Friends, today we are going to read the second chapter of English Reader, which is Granny's Sari. It is a story of a lovely green sari which becomes a piece of happiness for many people. How? Let's know. Granny's favorite sari was a very special one. It had a picture of a forest printed on it. उस साड़ी पे एक फॉरेस्ट की पिक्चर बनी हुई थी. There in the forest were pictures of spotted deer playing in the grass. उस पिक्चर में कुछ स्पॉटेड हिरन जिन पे स्पॉट्स थे ऐसे हिरन की फोटोज थी. Next to the deer were fat lions sleeping on the rocks. हिरन के बाजू में कुछ शेर सो रहे थे. Near the rocks was a stream. एक झरना था where a mother bear was busy catching fish for a baby bear. जहाँ भालू अपने बच्चों के लिए fish catch कर रही थी. High up in the tall trees were monkeys and squirrels eating nuts. वहाँ कुछ बंदर और गिलहरियाँ nuts खा रही थी. With them green parrots pecked at juicy red fruits. Pecked मतलब चोंच मारना. Green parrots जो रेड फ्रूट्स लगे थे उन पे चोंच मारकर उन्हें खाने की कोशिश कर रहे थे. When Granny wore her green sari, it seemed as if all the animals printed on it were live and moving as she walked. जब भी ग्रैनी वो साड़ी पहनती थी तो उन्हें देखकर ऐसे लगता था जैसे उन्होंने जंगल को अपने चारों ओर समेट लिया हो. और जब भी वह उस साड़ी को पहन के चलती थी तो ऐसे लगता था जैसे जंगल के सारे एनिमल्स उनके साथ चल रहे हों. One day, Granny washed her sari and hung it on the clothesline to dry. एक दिन ग्रैनी ने उस साड़ी को धोकर और सूखने के लिए छोड़ा. Suddenly, the wind came and blew it away. Suddenly, हवा चलती है और उसे उड़ा के अपने साथ ले जाती है. Oh no, my favorite sari has blown away, said Granny sadly. Don't worry, Granny, said Anu, her little granddaughter. I'm sure we will find your sari if we search for it. I will help you find your sari. Anu Granny की granddaughter होती है जो उन्हें अश्योर करती है कि वो साड़ी को ढूंढ लेगी. So Granny and Anu went down the road looking for the sari. They met a policeman. अनु और ग्रैनी दोनों साड़ी की खोज में निकल पड़ती है और तभी उन्हें एक पुलिसमैन मिलता है. Please policeman, said अनु politely. Have you seen my granny's साड़ी? अनु पुलिसमैन से पूछती है कि क्या उन्होंने ग्रैनी की साड़ी को देखा है. Of course I have, said the policeman. Yesterday I was chasing a robber. पुलिसमैन बताता है कि कल वो एक चोर को पकड़ रहा था. He had stolen things from a jewelry shop. उसने एक ज्वेलरी शॉप से कुछ चुराया था. He was running so fast he was about to escape. Just then a green sari came flying down from the sky and wrapped itself from his head. The robber couldn't see and he bumped into a tree. जैसे ही वो चोर भागने वाला था एक ग्रीन साड़ी आई और उसके मुंह के चारों ओर वो लिपट गई. चोर को कुछ दिखा नहीं और वो पेड़ से जा टकराया. I caught him and put him jail. पुलिसमैन ने उसे पकड़ा और जेल में डाल दिया. Next week I am going to get a medal, but the sari flew away again. उस पुलिसमैन को अगले हफ्ते एक मेडल मिलने वाला था पर वो साड़ी फिर से उड़ गई. So Anu and Granny kept walking in search of the sari. They passed Lakshmi's hut. Lakshmi was a fisherwoman. पुलिसमैन से ये जानकारी मिलने के बाद कि वो साड़ी फिर से उड़ गई थी, अनु और ग्रैनी साड़ी की तलाश में निकल पड़े. चलते चलते वो पहुँचे लक्ष्मी के झोंपड़ी तक. लक्ष्मी एक मछुआरन थी. Good morning, Lakshmi, said Anu. Have you? And she stopped because Granny tapped her shoulder and whispered, Shh, look. अनु ने लक्ष्मी को गुड मॉर्निंग विश किया. जैसे ही वो उनसे पूछने लगी कि क्या उन्होंने वो साड़ी देखी है
ग्रैनी ने पीछे से उसके शोल्डर को टैप किया। देयर इन अ रो स्टूड लक्ष्मी's 3 children wearing new clothes. ग्रैनी ने देखा कि लक्ष्मी के तीनों बच्चे नए कपड़े पहने वहाँ खड़े थे। The eldest boy wore a green shirt. On the sleeves were pictures of spotted deer playing in the grass. The girl wore a dress that had a picture of a parrot on one pocket and a squirrel on the other. The little boy wore a shirt with a picture of fat lion. तो क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हैं ग्रैनी की साड़ी कहाँ गई? जी, लक्ष्मी के तीनों बच्चों ने ग्रैनी की साड़ी से बने कपड़े पहन रखे थे। सबसे बड़े लड़के ने पहन रखा था एक ग्रीन शर्ट जिसकी बाजू पे थे स्पॉटेड डियर जो कि ग्रास में खेल रहे थे। लड़की ने पहन रखी थी एक ड्रेस जिसके पॉकेट पे था एक पैरोट और दूसरे पॉकेट पे था स्क्विरल। सबसे छोटे लड़के ने पहन रखा था एक शर्ट जिस पे थी पिक्चर एक फैट लायन की। What a wonderful day it has been, said Lakshmi. लक्ष्मी ने बताया, I was wondering how to make new clothes for my children when a green sari came flying down and settled on my lap. उसने बताया उसे अपने बच्चों के लिए नए कपड़े चाहिए थे, तभी एक ग्रीन साड़ी हवा में उड़ती हुई उसके गोद में आकर ठहर गई। I asked all my neighbors, but they said it wasn't their sari. उसने अपने सभी पड़ोसियों से पूछा, वो साड़ी उनमें से किसी की भी नहीं थी। सबसे मालूम करने के बाद उसने उस साड़ी को कट करके और अपने बच्चों के लिए उससे कपड़े बना लिए। Of course, लक्ष्मी said Granny, they look wonderful. ग्रैनी ने बताया उसके बच्चे उस साड़ी में काफ़ी अच्छे लग रहे थे। Later that evening, Anu asked Granny, Are you sad because Lakshmi cut up your favorite sari to make clothes for her children? शाम को अनु ने ग्रैनी से पूछा कि क्या वो उदास है क्योंकि लक्ष्मी ने उनकी फेवरेट साड़ी को कट करके उनके बच्चों के लिए कपड़े बना लिए। ओह नो, रिप्लाइड ग्रैनी विद अ बिग स्माइल। ग्रैनी ने कहा वो बिल्कुल भी उदास नहीं है। When my sari was with me, it made me happy. After it flew away from me, it made so many people happy. I am not sad, I am happy. I always knew my sari was very special. ग्रैनी ने बताया कि जब वो साड़ी उनके पास थी तब वो बहुत खुश थी, पर जैसे ही वो साड़ी उड़ गई तो उसने काफ़ी लोगों को खुश किया। ग्रैनी ये देखकर बिल्कुल उदास नहीं थी। उन्हें पता था उनकी साड़ी काफ़ी स्पेशल है। पहले उनकी साड़ी के वजह से एक पुलिसमैन ने एक चोर को पकड़ा और फिर एक फिशर वुमन ने अपने बच्चों के लिए उससे कपड़े सिल दिए, जो कि उनके लिए बहुत खुशी की बात थी। मैसेज ऑफ द स्टोरी, हैप्पीनेस लाइज इन मेकिंग अदर्स हैप्पी। दूसरों को खुश करने में खुद की खुशी होती है। आई होप आपको ये स्टोरी समझ में आई हो। आप इस स्टोरी को पढ़ेंगे और इसके क्वेश्चन आंसर्स नोटबुक में लिखेंगे। थैंक यू सो मच।